everyone, this is Shreya and in today's video I am going to talk about my strategy to score 98.6% in class 12 CBSE board exam. I was from science stream, a regular school going student as well as a NEET aspirant who have given the NEET exam this year, that is 2025. In this video, I will be going to talk about all the resources I use, the strategies I opt to score this percentage 98.6 in class 12 CBSE board exam. In English, I scored 95, in physics 95, chemistry 100, biology 98, and in painting and mass media, which were additional, I scored 100 out of 100 in each subject. First of all, I would like to start with about me, that I was a regular school going student, good at academics, but yes, when I was like in the class 12, I gave many exams in schools and online coaching too. I have enrolled myself in a online coaching of physics wala, and it has actually helped me a lot. But I was a regular school going student. I went to school every day except like I have to take a leave for anything medical conditions or have to take leave for an emergency condition. But yes, I went to school regular. I completed my work, my school task, each and everything before time, as well as I completed my online coaching videos. But yes, online coaching videos up to 6 months. After 6 months, I actually collected a huge backlog, and I was so scared that I was not able to complete the backlog. And at the point, in October month, I was so scared that how will I complete my syllabus. So yes, if you are a regular student, if you are a regular school student, you have not enrolled in any offline coaching and you are taking online coaching now, so please keep in mind that whenever you study for the NEET exam, or you are actually preparing for the class 12 board exam, study with concentration, study with focus. रट्टा मारना नहीं है, आपको समझना है. Each and every topic you have to understand. अगर आप समझते नहीं हो, this will not work for you for the class 12 or NEET anything. Understanding is the main key. My strategy was to first of all read the chapter. If I don't understand from the school or anything, I used to do a one shot from the YouTube, because in online coaching there were 6 to 7 lectures and I have to complete it, but I failed to do so that time. So I just open the YouTube videos, search and scroll for the best one shot and complete the whole chapter in like 2 days, because one shot will be from 4 to 5 hours and it's impossible to complete the whole video in one shot, in one go. Because I was that student who was not able to study for long hours without a break. Break is very much important, and if you are following Pomodoro technique, it will be beneficial for you. But yes, I do not follow the Pomodoro technique. I follow the best strategy for studying for learning, which is Feynman technique. Now, what is Feynman technique? I think you know it, but yes, I would say when I was from class 8 to 9, I discovered the technique by own. I did not know this technique was known as Feynman technique. Which technique? Teaching yourself. Actually, class 8 में जब हमारी online classes चलती थी, तो उस time पे I used to like teach myself. ऐसे लिख के मैं खुद को पढ़ाती थी. अब पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है that you understand that which line you are lacking behind or which topic you are lacking behind, and this helped me to figure out what was actually the cons. क्या था कि इसमें कमी रह गई. इवन की क्लास 12 में भी फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, आई यूज टू टीच माई सेल्फ, और टीच करते करते मुझे ये पता चला कि दिस डेरिवेशन आई एम लैकिंग बिहाइंड, आई एम नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम, और आई एम नॉट गोइंग टू टीच द टॉपिक बिकॉज आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट. तो अगर मैं बोलूँ स्टडी स्ट्रैटेजी क्या थी, तो इस पूरे इतना तक आपने जितना देखा उसका यही कंक्लूजन है कि क्लास 12 में मन लगा के पढ़ो. यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, बिकॉज ऐसा नहीं है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज एवरी टॉपिक कैन कम इन योर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इन नीट एग्जाम. जब भी आप पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कुछ समझना है अपने टीचर से पूछो. स्कूल टीचर्स हैं, ऑनलाइन में अगर कोई वीडियो देखना चाहते हो या ऑफलाइन में भी चाहते हो तो ऑफलाइन में देखो, समझो. टीचर्स को बोलो कि आपको समझाए, क्योंकि एक हद तक समझ में आ जाता है कोई ऐसा टॉपिक. ठीक है, तो स्टडी स्ट्रैटेजी ये थी. इसके साथ साथ खुद को पढ़ाने लग जाओ. तो ये था सबसे पहले कि स्टडी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी. आप क्लास 10th में हो, अभी क्लास 10th के लिए अगर वीडियो देख रहे हो, बता दे रही हूँ ये स्टडी स्ट्रैटेजी सबके लिए काम आएगी. नीट के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, बोर्ड के लिए भी. ठीक है, तो खुद को पढ़ाना स्टार्ट कर दो. दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट, दैट टू स्टडी वेल
यूज फेमेंटिक। नेक्स्ट वन इज टेस्ट के बारे में बात करते हो। इन स्कूल देर आर वेर मेनी टेस्ट, प्री बोर्ड, रिविजन टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट और ऑनलाइन कोचिंग में भी जो रेगुलर संडे टेस्ट है। संडे टेस्ट मिस हो जा रहे थे मुझसे, आई एक्चुअली अनफिल्टर्ड एकदम सच में बता रही हूँ दैट आई मिस द संडे टेस्ट बट आई डिडंट मिस एनी इन द स्कूल टेस्ट। सो प्लीज आई वुड से कि टेस्ट के लिए जब भी पढ़ो, व्हेनेवर यू गो फॉर अ टेस्ट यू हैव टू रिवाइज थॉरोली। और अगर स्कूल के लिए, अगर स्कूल जा रहे हो, एकदम स्कूल के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो टेस्ट से पहले अगर पढ़ना चाहते हो, पूरा साल नहीं पढ़ना चाहते हो कि मुझे टेस्ट से पहले ही पढ़ना है, तो उसका एक मेथड हो सकता है, वेन एवर यू स्टडी फॉर द टेस्ट स्टडी वेल, कि ये शॉर्ट टर्म ना रहे, ये लॉन्ग टर्म ना जाए। या फिर आपके अगर स्कूल में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सो यू कैन गो फॉर इट, हर एक टेस्ट के लिए बार बार उसे रिवाइज। तो वेन एवर यू गो फॉर अ टेस्ट स्टडी वेल, लेकिन शॉर्ट टर्म ही लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ो, बार बार रिविजन करो। अब थर्ड आते हैं रिविजन के बाद। वेन एवर यू आर लाइक सिटिंग on the table, आप चेयर पे बैठ रहे हो, एकदम टेबल सामने, and you are like preparing you for the revision, the first thing I would say, revision does not mean you have to read the notes, okay? चिल्ला चिल्ला के भी पढ़ना कोई रिविजन नहीं कहता। पढ़ना है तो कुछ अलग से पढ़ो। The first I say the Feynman technique, use it here. Feynman technique will work for you, क्योंकि ये मेरे लिए वर्क किया है। मैंने क्लास 8 में इसे डिस्कवर किया था, तब मुझे पता नहीं था इसे Feynman technique कहते हैं, कि टीचिंग योरसेल्फ, ठीक है? अगर कोई भाई बहन है तो उसे बैठा के पढ़ा लो, उसका भी भला हो जाएगा। लेकिन येस, दिस टीचिंग हेल्प्स यू अ लॉट, ओके? तो रिवीजन के टाइम में कैसे रिवाइज करना है उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी। लेकिन हाँ, पूरे क्लास टाइम में बस द मेन मेथड तो पहला है समझ के पढ़ो, और दूसरा पढ़ने के बाद उसे रिवाइज करते रहो एट मच एक्सटेंट। जितना कर सकते हो उतना ही आपको रिवाइज करना है। अब अगर आपके स्कूल के टेस्ट में यू आर गिविंग द स्कूल टेस्ट रेगुलरली, तो ये जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्कूल टेस्ट से पहले आप बार बार रिवाइज करते हो उस चीज़ को, ठीक है? तो फर्स्ट वन मैंने बता दिया, सेकेंड मैंने बता दिया टेस्ट में, थर्ड आपका रिविजन है, यू हैव टू डू द रिविजन। और यहाँ पे बताना चाहती हूँ, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम है, हो सकता है सिर्फ आपको 75% ना हो जेई के लिए, नीट के लिए बस 50% ना हो, लेकिन कुछ अगर एग्जाम दे रहे हो तो उसे ध्यान से समझ के दो। नीट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो नीट में एमसीक्यू बेस आता है, नीट के लिए जो आप पढ़ते हो वही आपका बोर्ड में आएगा, बस आपको लिखने का स्टाइल नहीं पड़ता, इसलिए नंबर करते हैं। यू नो द नॉलेज, यू नो एवरीथिंग, यू नो द आंसर, बट द नंबर डिडक्ट्स बिकॉज यू आर नॉट एबल टू राइट द करेक्ट आंसर। इसके लिए भी मैं एकदम अच्छे से लिख लिख के बना दूंगी। सो फर्स्ट वन इज टू स्टडी इफेक्टिवली, सेकेंड इज टू, अगर टेस्ट दे रहे हो तो डू द टेस्ट, prepare for the well test and revise each and every. Then the next topic comes कि I want to share कि मैंने अभी इस कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि मैंने दूसरे चैनल पे, द आर्ट चैनल, I posted my class 12 painting portfolio and previously I said that I have taken painting as a subject. तो पेंटिंग मेरा बहुत दिन से अच्छा था and I used to go for competitions. तो competitions में आपको पता है कि पूरा दिन वेस्ट होता है, लेकिन उस दिन की पढ़ाई को मैंने कभी लीव नहीं किया। आई कम्प्लीटेड द वर्क ऑन द डे। मैं स्कूल से आती थी कॉम्पिटिशन से, अपने दोस्त से पूछती थी कि आप भेजो मुझे काम, मैं कर लूँगी, ठीक है? उसी दिन कुछ समझ में ना आए तो नेक्स्ट टीचर को पूछती थी, नहीं तो मैं खुद ही कर लेती थी उसको। तो यही मैं बताना चाहूँगी दैट इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन योर स्कूल लाइक डांस, म्यूजिक, आर्ट्स, तो यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी डे। अगर आपका कोई फंक्शन है, अगर आपको कुछ भी है, कॉम्पिटिशन फंक्शन है, तो उसी दिन घर आके कुछ ना हो वीडियो देख लो, रिवाइज खुद से नहीं करना, जस्ट गो फॉर अ वीडियो एंड यू विल डू इट बेटर, ठीक है? एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। क्लास 12th में मेरे बहुत सारे दिन छूटे हैं फेस्टिवल्स के लिए, मतलब आई हैव नॉट सेट फॉर द स्टडी, बहुत ऐसे दिन हुए हैं, बट जब मैं पढ़ने बैठी तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, तो ये छूटने वाला ना हो, हर एक दिन पढ़ो, ठीक है? और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज बनाना तो मैं बना दूंगी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए, सबके लिए। इंग्लिश के लिए तो बहुत ईजी होता है इंग्लिश में लाना, अगर आपको लिटरेचर सेक्शन अच्छे से आता है, राइटिंग अच्छे से आती है, प्रेजेंटेशन अच्छे से आता है, तो ईजी हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए मैं क्लास 12 के लिए बना दूंगी, ठीक है? तो मैं ये बताना चाहूँगी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, कोई बात नहीं, बस पढ़ाई को चालू रखना, यू हैव टू रेगुलरली स्टडी, ठीक है? एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक? अब सेकेंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट वाज माय स्कोर इन प्री बोर्ड्स एंड इन टेस्ट इन स्कूल। मैं टेस्ट की बात कर रही हूँ, तो प्री बोर्ड्स और टेस्ट में मेरे अराउंड 85 to 90% स्कोर आए थे इन एग्रीगेट। किसी किसी में 90% थे, किसी किसी में 82 थे, ऐसा फ्लक्चुएट होता था। सब्जेक्ट वाइज बताओ तो इंग्लिश में मेरे 80 70 अराउंड परसेंटेज आ रहे थे इन एन एग्रीगेट। फिजिक्स में 85 जा रहे थे। कि बायो में अच्छा था, बायो आई डू वेल इन स्कूल टू, और केमिस्ट्री में भी वही 90 85 ऐसे आ रहे थे। दिस वॉज माई प्री बोर्ड स्कोर्स। लेकिन हाँ, प्री बोर्ड स्कोर्स देख के प्लीज़
डू नॉट लाइक गो इन द ग्लूम, एकदम दुखी मत हो जाना, वो एक सीखने का मेथड होता है। तो मैं एक पॉइंट छूट गया मेरा, वेन एवर यू गिव अ टेस्ट, इफ अ स्कूल प्रोवाइड्स आंसर शीट या आंसर बुकलेट आफ्टर चेकिंग, यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी मिस्टेक यू हैव डन इट। मैं क्या करती थी, हमें दे दिया जाता था, मैं घर आती थी, आई यूज्ड टू चेक ईच एंड एवरी मिस्टेक, और मैंने एक मिस्टेक कॉपी बनाई थी कि कौन से चैप्टर से मेरा ये गलत हो रहा है, तो उसे आपको देखना होगा, ठीक है, कौन से चैप्टर से गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, मैं ये लिख रखती थी, एंड देन आई यूज्ड टू रिवाइज इट और डू वट एवर इट्स रिक्वायर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट में, ये पॉइंट है कि टेस्ट जब भी हो कुछ का उसका आपको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बोला जाता है, नीट के लिए भी बोला जाता है। नीट के लिए लास्ट अप्रैल में मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, तो उसमें मैंने एनालाइज किया था और मुझे पता था कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक बचता है कि 11 कैसा गया मेरा और नीट का पेपर कैसा गया। देखो 11 में मैंने पढ़ाई की थी, लेकिन मेरे परसेंटेज आउट ऑफ 90% आए थे बस। और 11 की पढ़ाई से ज़्यादा मैंने 12th में अच्छे से पढ़ा, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि 12th का हर एक टॉपिक जो है ना, आई तक क्रिस्टल क्लियर, आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। कोई भी फॉर्मूला पूछो, पूरी फिजिक्स की फॉर्मूला शीट लिख के दे दूँगी क्लास 12 की, लेकिन दिस विल नॉट हैपन फॉर क्लास 11। क्लास 11 में मुझे पता है कि उस टाइम पे मतलब 10th में इतने अच्छे स्कोर करने के बाद थोड़ा हो जाता है कि आ जाएंगे 11th में नंबर, तो ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया। इन द नेट एग्ज़ाम थ्रू मार्च में व्हेन आई लाइक 25 को आई थी बायो का एग्ज़ाम था, हाँ, उसके बाद से गॉट प्रिपेयर फॉर द नीट एग्ज़ाम। 1 मंथ में आई कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स ऑफ 11th, रिविजन किया। 12th की नहीं की थी रिविजन, बिकॉज अभी तो पढ़ा था, तो इट वॉज लाइक इन माई माइंड, राइट। तो 11th मेरी थोड़ी कमज़ोर थी नीट के पर्सपेक्टिव से, 12th स्ट्रॉन्ग था। बट इस साल नीट ने पता नहीं क्या खेल दिखाया, आई डोंट नो, कि जो है जितने भी आपने 11th कैसा था, 11 मेरा अच्छा नहीं था ज़्यादा, 12th बहुत अच्छा था। तो अभी अगर आप 11th में हो, ये वीडियो देख रहे हो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। नीट में 11th 12th तो आपको आती रहती है क्योंकि आप बोर्ड के लिए पढ़ते हो, लेकिन 11th का ही मेन जो है लैग बिहाइंड हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये थी स्ट्रैटेजी। और लास्ट टॉपिक में आते हैं कि मैंने रिसोर्सेज कौन से यूज़ किए थे। तो मैंने कोई रेफरेंस बुक खरीदा नहीं था, मैंने बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खरीदे थे। आई गॉट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, मिल जाता है। For the physics, chemistry, bio, I have this book too, previous year question paper, and in this book, like from 2014 to 2024, there were all the questions included in it. Or if you want this previous year question to practice, tell me here, I will write it for you and I will also solve it for you, अगर आप चाहते हो तो, because previous year question repeat होते हैं, and I will shock. I will also be shocked. You will also be shocked. Why I am telling the previous year question repeat? इस साल में तो previous year question repeat ही नहीं हुआ था। होता है भाई, थोड़ा घुमा के देते हैं। इस साल का जो CBSE बोर्ड एग्जाम का फिजिक्स का पेपर था, वो एक्चुअली बस नॉट एट द लेवल, मतलब एक्सपेक्टेड से बहुत हाई लेवल का था। लेकिन येस, NCERT के एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर से आए थे, मेरे सेट में तो आए थे, ठीक है। और JEE के तो लेवल के आए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया है। NCERT तो है ही, NCERT फॉर द बायो एंड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव टू डू NCERT। फिजिक्स के लिए भी NCERT करनी है। अब मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग वीडियो बना दूंगी, जिससे सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी टू स्कोर 98.6% एंड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी नोट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एकदम अनफिल्टर वीडियो था, मेरा एक्सपीरियंस मैंने क्या किया था टू स्कोर दिस परसेंटेज। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।